Hello and welcome to UPSC Everest. Today is the day 5 of 15 days Indian Polity Challenge and we are covering M. Lakshmikant book in the 15 days. So today we will see three major chapter today and one chapter which is also very important but it's a very small chapter. So the very first chapter we will do is basic structure of the constitution. In this chapter we will see only two topics, sorry, that is emergence of the basic structure and elements of the basic structure and some notes and references. And the second chapter we will see is precedent. Precedent is a very important chapter. Today we will cover this chapter, and in this chapter we will see election of the president, qualification, oath and conditions, terms, power, veto power, and some more important topics, and also notes and references. Then we will cover vice president. In the vice president chapter, we will see election, qualification, oath, conditions of office, term of office, vacancies, and election, power, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर करेंगे हम लोग. ओके, एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. एंड अलोंग दिस टू चैप्टर वी विल स्टडी one more chapter, that is governor. Governor is also a very important chapter और हम लोग ये दोनों तीनों साथ में करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ओके, तो इन द गवर्नमेंट चैप्टर वी विल सी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, टीम सॉरी term of governor office, powers and function of governor, constitutional position of governor, and some notes and references. So let's move toward the first chapter. So here is the first chapter, that is basic structure of the constitution. Basic structure of the constitution. In this chapter, here is an introduction, okay, and then we'll move toward the topics. That is elements of the basic structure. This is the topic, and these are the some key points which we have to cover, okay, and put it in your notes. Okay, then here is some table, that is evolution of the basic structure of the constitution. इसमें कुछ सारे केसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप काफ़ी अच्छे से करना और साथ ही साथ इनको आप गूगल कर लेना एक बार. ओके, दिस केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको काफ़ी अच्छे से करना है, एक बार गूगल कर लेना है या फिर आप यूट्यूब पे इनका सेपरेट कुछ कुछ वीडियोस रहता है, आप वो देख सकते हो जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए. ओके, सो these आर द केसेस. ओके, एंड एट द एंड वी विल सी नोट्स एंड रेफरेंसेस. इसमें भी ये सारे केसेस ही हैं जिनको आप अच्छे से देख लेना एक बार और गूगल कर लेना. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द our next chapter, that is precedent. So here is the second chapter, that is precedent. Okay, so in this chapter this part is introduction. Okay, and the first topic is election of the president. Okay, and here are some key points: elected member of both the house of parliament, elected member of legislative assembly of the state. So यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि एक प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है. ओके, लेट्स सी आगे क्या है. एंड यहाँ पे आप ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे पॉइंट्स में इसको दिया गया, काफ़ी अच्छे से इसको समझाया गया. तो आप इसको एग्जैक्टली आप उठा सकते हो और अपने नोट्स में कवर कर सकते हो. ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा. ऐसे ही आप अपना आंसर राइटिंग के लिए भी आप कंटेंट लेते हो. तो अभी आगे क्या है. ओके, सो दीज आर द सम पॉइंट्स. तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करना है. तो जैसे यहाँ पे है क्वालिफिकेशंस, ओथ्स एंड कंडीशंस. तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. तो ये सारे क्वालिफिकेशंस है कुछ कुछ जो एज अ प्रेसिडेंट
होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी तक जितने प्रेसिडेंट हैं हुए हैं उन सब का नाम यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको देख सकते हो। ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको काम आ सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ वगैरह आ सकता है ईयर वाइज, तो आप एक बार वो चेक कर सकते हो। एक बार आप इसके गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है। सो यही सब है इस चैप्टर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका कोई भी टॉपिक हम लोग को मिस नहीं करना है। सारे के सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। पहले हम लोग प्रेसिडेंट पढ़े, फिर पहले प्रेसिडेंट पढ़े हम लोग, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और फिर गवर्नर पढ़ेंगे। तो ये इससे एक हम लोग का इंटरलिंक्ड है और ये एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। ओके, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग मूव करेंगे। देख सकते हो आप, काफ़ी यहाँ पे काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना। ओके राइट, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। हियर इज़ द चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो आज हम लोग को बस 3 चैप्टर ही कवर करना था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। बट एक चैप्टर मैंने ऐड किया जो काफ़ी छोटा-सा है, जिसको आप ईज़िली कवर कर सकते हो, और आप दैट चैप्टर विल टेक हार्डली 15 टू 20 मिनट्स आई गेस। तो आप उसको काफ़ी ईज़ी टैकल कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे है इलेक्शन, यहाँ पे कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये सबको आप अपने नोट्स में ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, तो आप जो नोट्स लिख रहे हो, वहाँ पे इस सब पॉइंट को आप डायरेक्टली उठा करके अपने नोट्स में डाल सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे सारे वाइस प्रेसिडेंट का नेम लिखा हुआ, आप इनको गूगल कर लेना, अभी तक का अपडेट कर लेना, राइट? तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट हो जाता है। एम लक्ष्मीकांत ऑल्दो इज सफिशिएंट इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द 2025 प्रीलिम्स, एंड आई गेस इट्स इनफ फॉर द पॉलिटी। हाँ, अगर आप कुछ-कुछ पॉइंट्स है या फिर पीवाईक्यूज़ में आपको कुछ-कुछ मिल रहा है, तो आप उसको गूगल करो और वहाँ से अपना नोट्स में डाल सकते हो आप। ओके, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है, राइट? ओके, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या-क्या पावर होता है, तो आप ये जितने भी पॉइंट हैं, आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हो एक बार। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ-कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट एट ग्लेंस, तो आप ये कुछ देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करना, हमें इसको काफ़ी अच्छे से करना है। इसको अच्छे से आप गूगल करो और उसके बाद अपने नोट्स में इसको ऐड कर लो। ओके, एंड द लास्ट चैप्टर फॉर द टुडे इज़ द गवर्नेंस, सॉरी, गवर्नेंस आज का लास्ट चैप्टर है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गवर्नर भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो जैसे ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, आप इसको पढ़ लो, उसके बाद आप टॉपिक में आ जाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। एक गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको काफ़ी अच्छे से देखना है, और जो पॉइंट आपको यूज़फुल लग रहा है आप अपने नोट्स में उसे ऐड करते जाओ, राइट? तो यहाँ पे हमें देखना है कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? तो यही है, इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से करना है। ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप इजीली आप इसको समझ सकते हो। इसमें कुछ बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, तो आप इसको इजीली एक बार रीडिंग करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो आज हम लोग का डे 5 यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। ओके, ऑल्दो आज हम लोग 4 चैप्टर कवर कर लेंगे, बट ये 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एंड एक चैप्टर जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो काफ़ी छोटा-सा है, तो उसको हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, ऑल्दो ये चैप्टर
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोगों को काफ़ी अच्छे से करना है। इसका जो भी पॉइंट्स है, जो भी सब कुछ दिया हुआ है, इसको काफ़ी अच्छे से आप कर लो, ओके? जैसे फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, तो ये सबको काफ़ी अच्छे से हम लोगों को करना है और साथ ही साथ ये स ये सारे पॉइंट्स जो है, इन सब सारे पॉइंट्स को नोट्स में अपना ऐड करते जाना है, ओके? जैसे ये सारे टेबल्स जो हैं, इनको आप सॉर्ट करके अपने वर्ड में आप पहले रीड करो, अपने वर्ड में खुद से अपने टेबल बनाओ और टेबल बना करके अपने नोट्स में उनको ऐड कर लो, राइट? तो इससे क्या होगा कि आपका एक खुद का एक अंडरस्टैंडिंग होगा और आप उसको जब अपने लैंग्वेज में लिख देते हो, तो आपको ईज़िली याद रहता है, वो चीज़ आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपको एंड टाइम में आपके पास एक अच्छा नोट्स भी हो जाएगा और एक ऐसा लैंग्वेज में होगा जो आप खुद ईज़िली समझ सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ओके? सो एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस मैं इस पे काफ़ी फ़ोकस करता हूँ कि इस चीज़ को मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे केसेस रहते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपके नॉलेज को भी एनहांस करता है और आपके प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। सो एट द एंड हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को पीवाईक्यूज़ साथ-साथ करते रहना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके साथ-साथ पीवाईक्यूज़ करते रहो 2013 से 2024 तक। मैं अभी एक वीडियो लाऊँगा, उसमें बुक बताऊँगा कि कौन से बुक आप पीवाईक्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके? जो प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, ओके? और साथ ही साथ अगर आपको ये पढ़ते-पढ़ते अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको थोड़ा-सा बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आप एनसीईआरटी करो क्लास 11th एंड 12th का, ओके? और साथ ही साथ करंट अफेयर्स हम लोग को करते रहना है। या तो आप अगर जैसे हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ लो या फिर अगर आप कोई कोचिंग का मैगज़ीन ले रहे हो, तो मैगज़ीन में से जो पॉलिटी का जो पोर्शन होता है, आप उसको उठाओ और साथ-साथ इंटरनेशनल रिलेशन, ये 2 पोर्शन हम लोग को करंट अफ़ेयर्स का कवर करते रहना है, ओके? साथ ही साथ हम लोग को टेस्ट देते रहना है। तो ये था डे 5 हम लोग का और द 10 डेज़ का चैलेंज बचा हुआ है, जो हम लोग ईज़िली कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज़ एंड ऑल द बेस्ट।